हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Plateaus. There's a plateaus is the most important here. The plateaus cover about 80% of the earth as a surface, and this is a landform has a large developed area on the top, unlike a mountain, and has a nearly even a surface out there. Every often river is a streams cut out of deep valley and the grass in a plateau region. In a place of the original smooth and topograph, it is then to the change into a restricted is a plateau. A plateau, however, remaining is a much higher above the sea level of the nearby area. Thus, the normally 600 meters above the sea level, there are plateau of Tibet and the Bolivia is more than 3,600 meters above the sea level. That is the most important here. Next here is a classification of the plateaus. This is the most important here, a classification of the plateaus. On the basis of the geographical location and structure of rock, the plateaus can be classified as a three types. There is a first here intermountains plateaus, and second is a mount plateaus, and the third is a continental plateaus. There is a most important, and the first here the intermountain plateaus. There is the most important here. The plateaus which are the borderings. The fold mountain range are partly is a fully enclosed within them are the intermountains plateaus. The vertical movements arise this extensive is a landform and nearby the horizontal rock to thousands of meters above the sea level. The extensive and the over 4,500 meter high plateaus of the Tibet is one such example. There is a most important there 4,500 meters highly plateaus of the Tibet. There is a so example. It is surrounded by the folded mountain like Himalaya, Karakorams, Kunam, and the Tanusa on their two sides. The plateaus of the Colorado is another well known as the example over 2 kilometers high, into which the river has cut the Grand Canyons and it is a series of the gorges. The plateaus of the Mexico and Bolivia and the Iran and all over example of these types of the plateaus. Here show the important is the intermountainous plateaus. There is the most important. There is a show the arrow line. There is a intermountainous plateaus. There show the clear of the or problem for the mind. There is this diagram. The next here is a Piedemontal plateaus. There is the most important Piedemontal plateaus. A plateau that is situated at the fold of mountains and the bounded on the other side by plain or on the is called the Piedemontal plateaus. There is a figure there are plateaus of the Malwa in India, and those of Patagonians is facing the Atlantica and the ocean and the Afrosians and the situated between to the Appalachians is a mountain and Antarctica is coastal plain in the USA. Or there is example. In there is a case of area once high has now to be been reduced by the various agent of evasions for these reasons, and these are also called to the plateaus of generations. Generations is the plateaus is also called to the Piedemontal plateaus. Here show the Piedemontal plateaus here, the mountain and Piedemontal plateaus here. And the next here the sea level. There is a clear for your mind the Piedemontal plateaus here. The next here is a continental plateaus. There is a third and the last the continental plateaus there. These are formed either by their extensive mountains uplifted or by there is a spread of the horizontal basis. Lava sheet is a completely covered the original topograph to be a great depth. The volcanic lava is a cover a plateaus of the Maharashtra in India, and Sankum River the plateaus is the northern western USA are the example of this type. And these are also called the plateaus of the accumulation. There is the most important here. And the all continental plateaus show on the erupted to the evolution in the contract to their nearby the lowland of the sea.
As the compared to the other, these plateaus is cover a vast area like the Great Indian Plateaus, and this is the Arabia and Spain, Greenland, Africa, and Australia. And there may be a title on their side of without any disturbance and the horizontal nature of the underlying rock stair, as it is the case of the Great Indian Plateaus. There is the most important here. Here show the continental plateaus. Here there is the most important. There is the two-sided sea here show and the center of the plateaus. There is the most important diagram here. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर आया है प्रमुख स्थल रूप और उनका आर्थिक महत्व, इसके अंतर्गत जो हमारा अगला टॉपिक है पठार है। देखिए पठार प्लेटूस यानी पठार का जो है क्या महत्व है और पठार इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। पठार पृथ्वी की सतह का लगभग 18% भाग घेरे हुआ है और पठार का एक बहुत ही विस्तृत भू ऊंचा भाग है, जिसके सबसे ऊपर का भाग जो है पर्वत के विपरीत लंबा चौड़ा और लगभग समतल होता है। पठारी क्षेत्र में बहने वाली नदियां पठार पर प्रायः गहरी घाटियां और महाखंड बनाती हैं और इस प्रकार पठार का जो है मौलिक समतल रूप जो है कटा फटा या ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। फिर भी पठार जो है आसपास के क्षेत्र या समुद्री तल से काफ़ी ऊंचा होता है। पठार की ऊंचाई जो है समुद्र तल से 600 मीटर ऊपर मानी जा सकती है, परंतु तिब्बत और वेलसिला जैसे पठार समुद्री तल से जो है 3600 मीटर से भी अधिक ऊंचे माने जाते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। पठार अगर देखा जाए तो 18% जो है हमारे पृथ्वी का सतह को जो है घेर रखा है और कहते हैं पठार जो है समुद्री तल से काफ़ी ऊंचा होता है, यानी पठार की ऊंचाई लगभग समुद्र तल से जो होता है 600 मीटर ऊपर मानी जाती है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है पठारों का वर्गीकरण। देखिए पठारों का वर्गीकरण जो है मैक्सिमम 3 भागों में किया जा सकता है, यानी भौगोलिक स्थिति एवं संरचना के आधार पर पठारों को 3 श्रेणियों में बांटने की प्रावधान है। एक तो हमारा समक्ष आता है अंतरा पर्वतीय पठार, दूसरा होता है गिरिपद पठार और उसके बाद तीसरा जो होता है महाद्वीपीय पठार। चलिए देखते हैं पहले पठार क्या कहता है हमें। हमारे समक्ष जो आया है अंतरा पर्वतीय पठार। देखिए चारों ओर से ऊंची पर्वत श्रेणी से पूरी तरह से या आंशिक रूप से घिरे हुए भाग को अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। अंतरा पठार जो होती है ऊर्ध्व हलचलें लगभग क्षैतिज संतरों वाली शैलियों को बहुत ही बड़े भूभागों को जो है समुद्र तल से हजारों मीटर ऊंचा उठा देती है। संसार के अधिकांश ऊंचे पठार इसी श्रेणी में आते हैं और इसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर के आसपास मानी जाती है। तिब्बत का जो है विस्तृत एवं 450 मीटर ऊंचा पठार ऐसे ही एक उदाहरण है और यह वर्णित पर्वत जैसे हिमालय कराकोरम्स क्यूलून्स जो है तिलिसान से और 2 और से घिरा हुआ होता है, यानी देखा जाए दोनों ओर से जो है काफ़ी घिरा हुआ होता है। क्लोरोडोरो दूसरा चिर परिचित उदाहरण है जो 1 किलोमीटर से अधिक ऊंचा होता है, जिसे नदी में जो है ग्रैंड कैनियन तथा अन्य महाखंडों को काट कर बना दिया जाता है। और मस्को और बोलिविया ईरान और हंगरी इसी प्रकार के पठारों के अन्य उदाहरण हैं। तो यहाँ पर बहुत ही साफ शब्दों में बताया गया है कि इस तरह के जो है पठारों की जो ऊंचाई होती है 3000 मीटर से ऊपर होती है और ये जो है तिब्बत का विस्तृत जो है यहाँ 4500 मीटर ऊंचा पठार उठाया है, जैसे उदाहरण के रूप में दिखाया गया है। अब देखते हैं इसका डायग्राम क्या बताता है। डायग्राम में से और भी क्लैरिटी होगी। देखिए यहाँ पर जो है अंतरा पर्वतीय पठार को दर्शाया गया है। अगर आप देख सकते हो तो दोनों साइड जो है ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और बीच में जो है अंतरा पर्वतीय पठार है। उसके नीचे जो है अगर देखा जाए तो सी लेवल दिखाया जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है, यानी पहाड़ों के बीच में जो श्रेणी बनती है, जो क्षेत्र होते हैं, उसी को यह पर्वतीय पठार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 2 यहाँ पर श्रेणियाँ दिखाई गई है और दोनों के बीच में एक जो है पठार क्षेत्र दिखाया गया है। तो इसी 2 श्रेणियों के बीच में जो क्षेत्र बनते हैं उसी को ही हम अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। तो ये डायग्राम आपको जो है माइंड को बिल्कुल क्लियर कर देगा कि पठार होता कैसा है 2 पर्वतों के बीच में। तो ये डायग्राम आपके लिए काफ़ी विस्तृत था। अगला जो हमारे समक्ष आया है गिरिपद। देखिए गिरिपद पठार या इसको हम पेडमॉन्ट भी कहते हैं, पेडमॉन्ट पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये कहते हैं पर्वत के जो है पदों में स्थित अथवा पर्वतमाला से जुड़े हुए जो है पठारों से जिनकी दूसरी ओर मैदान समुद्र में गिरिपद पठार कहलाता है। यानी आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा कि आखिर इसमें बात क्या कही गई है। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो पर्वत के पादों में स्थित, यानी पर्वत के पैरों में, ठीक है, पैरों के पास स्थित
ठीक है, अथवा जो है पर्वतमाला से जुड़े हुए, यानी अगर मान लीजिए कोई कहीं पर्वतमाला है और उसके जगह कुछ क्षेत्र जो है समतल है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, गिरिपद पठार। यानी गिरी मतलब क्या होता है, ऊंचा ऊंचा पर्वत श्रृंखलाएं, और पद मतलब उसके पैरों के नीचे। तो इसका मतलब समझ में गए होंगे आपके लिए क्लियर, कि जो है बड़े बड़े जो है पर्वतमाला, उसके जो है नीचे जो पठार क्षेत्र उपस्थित है, जो समतल जगह है, उसी को हम गिरिपद पठार कहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समझ के लिए था। देखिए, क्षेत्रफल कम होने का सबसे बड़ा कारण ये भी रहता है कि अगर दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अगर उसके बीच में अगर हम देखें तो कम ही होता है, यानी क्षेत्रफल बहुत ही कम ही रहेगा। और इन पठारों का निर्माण कठोर शैलों से होते हैं, यानी मजबूत शैलों से जो होता है इसका निर्माण होता है। भारत में मलबा पठार, दक्षिण अमेरिका में जो है पेंटागोनिया का पठार, जिसके एक और अंटार्कटिका महासागर, और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है प्लेटोसियंस पर्वत और अंटार्कटिका तटीय मैदान के बीच प्लेटोनिशियंस पठार इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये किसी समय बहुत ऊंचे थे, परंतु अब जो है अपरदन के बहुत से कारक द्वारा घिस दिए गए हैं। इसी कारणवश इन्हें जो है अपरदन के पठार के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये पठार जो है अपरदन के कारण घिस गए हैं, जैसे अपरदन के पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो गिरिपद पठार के बारे में आप समझ गए होंगे कि पर्वतों के जो पैरों के नीचे होते हैं, उन क्षेत्रों को हम जो है क्या कहते हैं, गिरिपद पठार कहते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है महाद्वीपीय पठार। देखिए, महाद्वीपीय पठार क्या होता है, धरातल के एक बहुत बड़े भाग के ऊपर उठने या बड़े भूभाग पर जो है लावा की परतों के काफ़ी ऊंचाई तक जाने से महाद्वीपीय पठारों का निर्माण होता है। अब देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो साधारण शब्दों में धरातल के एक बहुत बड़े भाग के ऊपर, यानी धरातल होती है, वहाँ पर बहुत बड़े भाग के ऊपर उठने या जो है बड़े भूभाग पर लावा की परतों के काफ़ी ऊंचाई तक जाने से महाद्वीपीय पठारों का निर्माण होती है। महाराष्ट्र का लावा पठार, उत्तर पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में स्नेक नदी पठार इस प्रकार के पठारों के उदाहरण है। यानी भारत में महाराष्ट्र के पास है और अमेरिका में देखा जाए तो ये नदी पठार स्नेहक जो होती है वहाँ पाया जाता है। इनको निक्षेपण के पठार भी कहते हैं। महाद्वीपीय पठार अपने आसपास के क्षेत्रों तथा समुद्री तल से स्पष्ट ऊंचे उठे हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार के पठारों का विस्तार सबसे अधिक होता है, और भारत का विशाल पठार जो है ब्राज़ील का पठार, अरब का पठार, स्पेन, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के पठार, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के पठार महाद्वीपीय पठारों के सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये जो है महाद्वीपीय पठार जो है कई मानने में हर क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। अब ये जो है महाद्वीपीय पठार दिखने में कैसा लगता है, चलिए देखते हैं कैसा लगता है ये। देखिए, महाद्वीपीय पठार जो होती है कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है बिल्कुल ही जो है पर्वत श्रृंखलाएँ होती है, यानी यहाँ पर सबसे बड़ी जो है पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो दूसरी साइड भी पर्वत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डायग्राम में मेंशन नहीं है। यहाँ पर जो लिखा है महाद्वीपीय पठार, ये गलत लिखा गया है। ये एक्चुअली में जो है गिरिपद पठार के जो है एग्जाम्पल है। कहते हैं, देखिए दोस्तों, गलतियाँ जो है बुक में भी बहुत जगह देखने को मिलता है, तो इस बात को सुधारना ही सही रहेगा। महाद्वीपीय पठार जो होती है दोनों साइड से पर्वत श्रृंखलाएँ होती है और बीच के छोटे क्षेत्र होते हैं, ठीक है, तो उसे महाद्वीपीय पठार कहते हैं। लेकिन ये जो हमारा डायग्राम दिख रहा है वो गिरिपद पठार होता है। अब हम देख लेते हैं कि महाद्वीपीय पठार कैसा होता है। चलिए देखते हैं महाद्वीपीय पठार कैसा होता है। देखिए, महाद्वीप पठार जो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स दिया हुआ है, इसे महाद्वीपीय पठार कहते हैं। और इसके दोनों साइड अगर आप देखोगे तो समुद्र होते हैं। समुद्र के बीच में जो होता है ये महाद्वीपीय पठार जो है ऑटोमेटिक उठ जाता है। इसको हम टापू भी कह सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई जगह टापू भी आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं टापू के जैसे ही होते हैं, चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए होते हैं और बीच में जो होते हैं ये महाद्वीपीय पठार उठे हुए होते हैं। तो ये जो कई मानने में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि टूरिस्ट जो होते हैं, टूरिज़म्स जितने भी होते हैं, वो इन ऐसे जगहों पर जो है काफ़ी आकर्षित होते हैं और समय बिताने के लिए ये ऐसे जगह पर जाना ही पसंद करते हैं। तो इसके बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखिए, अगर हम जैसे कि बात की है पर्यटकों की, तो आप जो हम देखेंगे कि इसका जो है इकोनॉमिकल वैल्यू क्या है। तो चलिए देखते हैं हमारा कि इसका इकोनॉमिकल वैल्यू क्या है प्लेट्यूज का। The next topic here are important economical value of plateaus. There is the most important here
There is an important also is the economical value. We observe there is a prevention of plateaus are the show or development of agriculture and buildings of the road on their plateaus. And this factor is also explained why the plateaus are the especially the populated is the nerve thinless and plateaus are the extremely is useful to the mankind in the flowing bay. Who is the bay here? The first bay here, the storehouse of the mineral. There is a first way, the storehouse of mineral. Most of the mineral in the world are found in the plateaus. Is beside there is the extension of the mineral is relative as are on the plateaus, and these minerals are the indispensable or raw materials for our industries. We get a gold from to the plateaus of Western Australia, copper, diamond and the gold from the plateaus of Africa, and the coal, iron, manganese, and mica from the Chota Nagpur plateaus in India. That is the most important here, or economical value of the plateaus. The first here is storehouse of the mineral. There is storehouse of mineral here. The stores here are diamond, coppers, and the gold. That is also important in India here, Chota Nagpur plateaus in India. There is a most important. There is a coal, iron, magnesium, and the mica here present. They are the most important. The next here is a generation of the hydel power. There is the most important also. The river falling down to the edges of the plateaus from the waterfalls. And this waterfalls provide to the ideal side of the generating of hydropower. Next here is a cool climate. There is a cool climate is the most important. The higher part of plateaus or even to the tropical and subtropical region have a cool climate. And now they have a track to the Europeans to be settled. There are the developed their economics. Example South and East Africa. That is the most important. The useful for the animal rearing and agriculture. The plateaus have a large as grassland area suitable for the animal rearings, especially of sheep, goat, and cattle. They provide to variety of products such as the wool, milk, meat, and the hair and skin. The lava plateaus is compared to the all other plateaus are the richest is agriculture since their soil is very fertilized. That is the most important. Here the soil is a fertility. There is a mostly, and there is a product here a wool, milk, meats, and the huddle of the useful animal rearing of agriculture here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है मानव जीवन में पठारों का महत्व। देखिए मानव जीवन में पठारों का क्या महत्व हो सकता है। कहते हैं लंबे समय से लगातार अपरदन के कारण पठारों के तल प्राय जो है असमतल हो जाते हैं, और जिस कारण यहाँ जो है आवागमन के साधनों तथा जनसंख्या का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है। फिर भी पठार मानव के लिए बहुत उपयोगी है। पठारों ने मानव जीवन के निम्न प्रकार से प्रभावित किया है। तो ये कई मायने में इंपॉर्टेंट रहता है। अगर देखा जाए यहाँ पर पहली हमें उपयोगिता के रूप में तो कहते हैं खनिजों के भंडार है। यहाँ पर कहते हैं विश्व के अधिकांश खनिज पठारों से ही प्राप्त होते हैं। जितना भी विश्व में खनिज मिलता है वो पठार क्षेत्रों से ही मिलता है। जिन खनिजों पर हमारे उद्योग कच्चे माल के लिए निर्भर है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पठार में सोना, अफ्रीका के पठार में तांबा, हीरा और सोना तथा भारत के पठारों में कोयला, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक के विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि पठारों का कितना महत्व है। कहते हैं पठारों से ही सभी चीज़ों जो मिनरल्स हमें मिलते हैं, जो हमारे कच्चे माल मिलते हैं, सारे के सारे जो होते हैं पठारों से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो कई मायनों में जो है इसका जो है इकोनॉमिकल जो है महत्व बढ़ जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जल विद्युत उत्पादन। देखिए जल विद्युत उत्पादन पठारों के ढालों पर नदियां जल जो है प्रपात बनाती है, और यह जल जो है प्राप्त जल विद्युत उत्पादन के आदर्श स्थल माने जाते हैं। देखिए देखा जाए तो पठार जो है ढालों पर नदियां बनाते हैं। देखो ढाल रहती है और ढाल की वजह से क्या होता है, बिजली उत्पादन करने के लिए एक आदर्श क्षेत्र मिल जाता है जहाँ पर बिजली बनाना बहुत ही सुगम हो जाता है। उसके बाद है ठंडी जलवायु। देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी ठंडी जलवायु मिलती है। कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पठारों के ऊंचे भाग ठंडी जलवायु के कारण जो है यूरोपवासियों को काफ़ी आकर्षित करती है, और यहाँ रहकर उन्होंने जो है अर्थव्यवस्था का काफ़ी विकास भी किया है। उदाहरण दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका, ये जो है ठंडी जलवायु और ये पठारी क्षेत्र है, जैसे कि दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका है। तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट है।
पशु चारण के लिए उपयोगी। देखिए ऐसे पठार क्षेत्र जो होते हैं पशुओं के लिए जो है अच्छे खासी जो है उनके लिए भोजन मिल जाते हैं। पठारी भाग जो है पशु चारण के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। ये भेड़ बकरी के पालन के लिए बहुत ही उपयोगी क्षेत्र माने जाते हैं। भेड़ बकरियों से जो है वस्त्रों के लिए ऊन तथा भोजन के लिए दूध और मांस की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। लावा से बने पठार उपजाऊ है। अंततः उन पर जो है अन्य पठारों की अपेक्षा कृषि का अधिक विकास हुआ है। तो देखा जाए पशुचारण के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है।